کہ پنجنت کے مقام پر بدستور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پنجاب کے تینوں بڑے دریاؤں میں پانی دریائے سندھ میں گڈو براج کے مقام پر پہنچنے لگا۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,79,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ اریگیشن انتظامیہ نے حفاظتی بندوں پر نگرانی کے لیے عملہ مقرر کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ نوراجہ بھٹا عوامی بند ٹوٹنے سے سیلابی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ پانی کے شدید بہاؤ کے باعث لودرا بہاولپور روڈ کو مکمل بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رحیم یرخان میں گل محمد گنگا کیمپ کا معائنہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منچن بند بھی جائیں گی۔ جلال پور پیروالا کے نواحی گاؤں 86 میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب خود بچوں اور خواتین کو ہاتھ پکڑ کر کشتی سے اتارتی رہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا شجاع آباد بائی پاس کا دورہ۔ گردیز پور نالے پر بھی بریفنگ لی اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شجاع آباد میں بند کی تعمیر و مرمت کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ ادھر علی پور میں دریا چناب کی بے پھرتی لہروں سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ طاہر جوزیانہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات طاہر کی زبانی جانیں گے۔ طاہر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ علی پور میں دریا چناب کی بے پھرتی لہروں سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو اور ریلیف کے منتظر ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ علی پور میں دریا چناب کی بے پھرتی لہروں سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی ہے۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ بپھرے دریا چناب نے علی پور میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل ہو گئیں۔ سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ موضع عظمت پور کے سیلاب متاثرین کو املاک رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی، بچے اور بزرگ دھوپ میں سونے پر مجبور، 5 روز سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بچے اور بزرگ دھوپ میں سونے پر مجبور ہیں، 5 روز سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ موضع عظمت پور کے سیلاب متاثرین کو املاک رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی، سیلاب متاثرین بے یارو مددگار ریسکیو ریلیف کے منتظر ہیں۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بپھرے دریا چناب علی پور میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بپھرے دریا چناب نے علی پور میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ آپ کو اہم بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ علی پور میں دریا چناب کی بے پھرتی لہروں سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی۔ علی پور کی دیہاتی علاقوں کی شاہراہیں اربن سلمز میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ طاہر سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ طاہر جی، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے۔ انتہائی دردناک مناظر ہیں اور میں اس وقت خود جو ہے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ یہ علی پور کی صورتحال ہے اور موضع عظمت پور کی صورتحال ہے۔ یہاں پر خواتین دربدر ہیں، یہاں پر بچے دربدر ہیں، یہاں پر ہم جہاں بھی نظر پڑتی ہے لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ جیسے ہم اربن سلمز میں دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، یہ صورتحال اس وقت علی پور کے دیہاتی علاقوں کی ہے۔ جو شاہراہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پر اس وقت لوگ ہیں اور لوگوں کے پاس اپنا سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ لوگ اپنا سامان رکھ لیں اور اس سامان کے اوپر لوگ بیٹھ سکیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو مناظر ہیں یہ آپ کو میرا کیمرہ مین اکرم شاہین تھوڑا سا دکھائے۔ لوگ کافی یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں کہ یہ سڑک ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے اس سڑک نے اور اس سڑک کے اوپر لوگوں کو جو جتنی جگہ ملی ہے لوگ اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے یہاں پر دھوپ میں سو رہے ہیں اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جانور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں چاہوں گا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو دکھائے گا، یہ جانور ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا ہے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ یہ اس وقت موضع عظمت پور کی صورتحال ہے۔
ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है, ये पूरा अलीपुर इस वक्त इसी सूरत हाल में है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको ये सड़क का मंजर दिखाए। ये आप देखें, ये बेसरो सामानी का आलम है। जो कीमती सामान है इस वक्त सड़क पर आ गया है। लोग इस वक्त बेयारो मददगार हैं। यहाँ पर मुखैर हजरात गुजर रहे हैं, वो लोगों को अशिया खुर्दोनोश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आप देखें लोग किस आलम में अपनी जो इमलाक है उनको बचाते हुए जो है खुश्क जगहों पर जाते नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग सैलाब के मारे हैं। चनाब, दरिया चनाब ने यहाँ पर लोगों के घर छीन लिए हैं, लोगों को बेघर कर दिया है। जो छतें बची थी घरों की, जहाँ पर लोग छतों पर बैठकर महफूज थे, वो छतें भी अब गिर चुकी हैं। ये देखें, ये बेसरो सामानी का आलम है। ये देखें, बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, जानवर आपको नजर आ रहे हैं। ये खवातीन यहाँ पर, ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर बैठे हैं। ये देखें, लोगों के कपड़े जो हैं वो इस वक्त दरियाए चनाब जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया है। ये सूरत हाल है यहाँ के अलीपुर के अवाम की। बैठे से साढ़े मंजे भी करने से तले धरती ते सुमतू ते धरती ते बहंदो नाग वठू है हर चीज में खम जंद बला ऐसा पेर हंदो असा हुन केडे वणो असा रुले पे ना कोई तंबू है, ना कोई शाय है, ना कोई खावन पीवन की कोई शाय है। साढ़े तो अपने साथ भी कोई शाय कनी गरीब। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? आपको खाना हुकूमत ने दिया है कि आपने खुद पकाया या आपको मुखैर लोग देके गए हैं? नहीं थो तो कि जिम्मेदार जरे नो लेकिन हुकूमत कुछ नहीं देगी सबको। हाँ, कुछ नहीं देगी, पूछा भी नहीं जो बाबा बुढ़े पे जो मोए पे जो जींदे पे कई गाल नहीं की थी। ही वक्त साढ़े को एक रुपया नहीं देते, रुपया साढ़े को ये नहीं पूछा बाबा तो तंबू तो को मिले या नहीं मिले, वो हुकूमत नहीं पूछे साढ़े को कुछ है, साढ़े को कोई नहीं पूछी। हुन भी साढ़े जही महजूद जलते हुकूमत एक से जी भी ढटे में का नहीं ढटे। पानी आपने कहाँ से पिया है? पानी आपने कहाँ से पिया है? आपके कहाँ से इतनी है के डूब जाने जीती साढ़े हूँ तो जही ढटे पे हूँ कौन भी तो डूब जाने जीती पानी में जलते हुन भी देख सकते। बच्चों को आप खाना कहाँ से दे रहे हैं, दूध कहाँ से दे रहे हैं बच्चों को? कान से दे बैठे इहो टुकर तक गिरान खमे दे बैठे जरा देने बैठे सब वो खमे दे बैठे। 2 साल का बच्चा खाना खा लेगा? बस ये अब मर्जी बे मजबूरी दे ना शुक्र खमे दे बैठो। निमको खंदा बैठे सी देखो खुद देखो निमको खंदा पे खुद देख गिनो निमको है बच्चों को निमको कैसे निमको खिलाए हम लोग। हुकूमत सामान हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही, कोई ये तो कोई आ नहीं रहा, कोई आता है तो भगा के लेके जा रहा है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, घर गिर गए हैं। हम लोग क्या करें, परेशान है बहुत। कोई आता है तो सपीट मार के भाग के चला जाता है, इधर रुकता कोई नहीं है। बोलते हैं आगे जाएंगे हम लोग, पीछे इधर कोई खाना नहीं देता, ना पानी पी रहा है। पानी नीचे से पी रहे हैं हम लोग, मट्टी वाला पानी पी रहे हैं, दरिया वाला पानी पी रहे हैं। कोई साफ पानी नहीं दे रहा हम लोगों को। ये 1973 के बाद इतना बड़ा सैलाब आया, इसकी नौयत इतनी ज्यादा है कि इतने डेकेड्स के बाद इतना बड़ा सैलाब जो है वो यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके घर नहीं बचे, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और दरिया का पानी ये पी रहे हैं। और ये बेसरो सामानी का आलम है कि दरिया में रहते तो वहाँ पर डूबते, दरिया से बचकर अब यहाँ पर आए हैं खुश्की पर, तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो दरिया में थी। ये आप देखें कि आप, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाए। ये यहाँ पर अफरा तफरी का आलम है। ये देखें, लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ 5 मिनट के लिए बैठकर अपने अहलो अयाल की खबर ले लें। यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हैं, पानी है हर जगह। और यहाँ पर जो पानी है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है, पानी से यहाँ पर बदबू आ रही है। और जो रात की सूरत हाल है वो इससे ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सैलाब है, जो आबी यहाँ पर जानवर हैं वो निकल सकते हैं और लोगों को काट सकते हैं। आप बताएं जी, ये बच्चा है आपके साथ, खाना मिला, खाना खाया? नहीं, खाना नहीं किया, भूखा है बच्चा। ये सारे भूखे रोड पे आ गए, ना कि कपड़े मिले ना कि खाना मिलता पे। खाना लेके आते तो अगा कर रहे खाना, सारे भूखे बच्चे। आपने कुछ खाया है? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? कितने दिन से रह रहे हो आप? कितने दिन से रह रहे हो इधर 3 दिन से। 3 दिन से। तो फिर आप यहाँ पे क्या कुछ खाया है, कुछ पानी मिला है, कुछ मिला है? सोते कहाँ पे हो? उधर रोड पे सोते हैं। रोड पे सोते हो? चारपाई नहीं है कोई? चारपाई 1-2 सी, वो भी और बंदे आए ने। ठीक है, वो है। तो आपको वापस घर जाना है? घर की याद आती है? याद आती है। घर जाना है वापस? जाना तो है, लेकिन पानी है बड़ा। ये दर्द की एक कहानी है जो कि सिर्फ हम आपको थोड़ा सा ये 200 मीटर चले होंगे, ये आपने देखा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है।
लोगों का ये आलम है, यहाँ पर ना कोई इमदाद पहुँची है, ना रेस्क्यू पहुँचा है। और यहाँ पर फिर वही कि जो लोग अभी भी दरिया में फंसे हुए हैं, उनसे प्राइवेट कश्तियों वाले वही एक जान का जो है उसकी कीमत मांग रहे हैं कि इतने पैसे आप हमें दें तो आपकी एक जान जो है उसको बचाएंगे और मवेशी जो है उनको बचाकर यहाँ पर लाया जाएगा। उनको बचाएंगे। ताहिर, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह के सैलाब मुतासरीन सहूलियात से महरूम। बेट 72 के सैलाब मुतासरीन को 3 दिन से खैमाजात भी ना मिल सके। मुतासरीन कहते हैं खाना और बच्चों का दूध भी मुयस्सर नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तरंडा मोहम्मद पनाह के सैलाब मुतासरीन सहूलियात से महरूम। बेट 72 के सैलाब मुतासरीन को 3 दिन से खैमाजात भी ना मिल सके। मुतासरीन कहते हैं खाना और बच्चों का दूध भी मुयस्सर नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अली से। मोहम्मद पनाह के नवाही इलाकों में दरियाए चनाब ने तबाही बचाकर रख दी है। इस वक्त हजारों अफराद जो है बेघर होकर मिंचन बंद पर खुले आसमान के नीचे बेजारो मददगार बैठे हैं। 3 रोज से मौजा 72 के जो मकीन है वो खैमाजात से महरूम है और इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज एक तरफ तो सीएम पंजाब की आमद मुतवक्के है और इंतजामिया तेजी के साथ अपने इंतजाम मुकम्मल करी है, तो दूसरी जानब जो ये गरीब लोग हैं जिनका घर और सब कुछ सिलाब की नजर हो चुका है, वो इस वक्त बेजारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर है। मुतासरीन से बात कर लेते हैं कि उनको कितनी तकलीफ का सामना है। असा को कोई सहूलियत नहीं दी गई सही। असा 3 दिन थी गए पानी दे विचों निकलते ऐसे, ना असा कोई था कोई खाना मिले, ना असा को कोई खैमा मिले। असा वस्ती दवणे जो ऐसे सारे माल फंसे हुए हैं, सारे बंदे भी फंसे हुए हैं, ते असा को कोई कढ़ण वास्ते भी तैयार कानी। माल आमदे कि कढ़ भी आमदे तो अगो वाल कोई इंतजाम कानी होने वास्ते, कोई खावन दा, कोई माल दे चारे दा। छोटे छोटे बच्चे दूध वास्ते भी परेशान हैं। तो असा लोग मोहतरमा दे रिक्वेस्ट करें कि सारी मेहरबानी करें, सारी इल्तमास को दे उते तवज्जो देवें और सारे उते शफकत फरमावें। इंतजामिया मुतासरीन का ये इल्जाम है कि इंतजामिया न उन्हें बर वक्त खुराक देती है, न दूध देती है। 3 रोज से वो इस वक्त मिंचन बंद पर मौजूद है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। वो सीएम पंजाब से यही अपील कर रहे हैं कि उनके लिए जो है फिलफौर अमली इकदाम किए जाएं, उन्हें खुराक भी बर वक्त दी जाए, बच्चों का दूध भी दिया जाए, उसके साथ साथ पाने के लिए उन्हें। गुलाम अली, अपडेट करने का शुक्रिया। बात करें खानपुर की, जहां दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेला 8,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन दरिया किनारे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खानपुर की जहां दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। सैलाबी रेला 8,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन दरिया किनारे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आमिर सोहेल से मजीद अपडेट जानेंगे। बिल्कुल, खानपुर दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है पानी की सतह बुलंद है। जो है यहाँ के मकामी सैलाब मुतासरीन हैं वो यहाँ दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएंगे, आपके जानवर भी यहाँ पर हैं, आप खुद यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ, हमारे जानवर यहाँ पर हैं भाई साहब। बात यह है कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जो तंबू वगैरह हैं वो भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा। 1 दिन दिया है चारा महकमा माल मवेशी वालों ने, 1 दिन दिया है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिया। हम यहाँ खुले आसमान तले बैठे हैं। वो कहते हैं कि उधर चाचड़ा साइड चले जाएं, उधर जाकर आप तंबू में शिफ्ट हो जाएं और आपको वहाँ राशन मिलेगा, खाना मिलेगा। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमारा माल है, हम वहाँ कैसे गुजारा कर सकते हैं? शहर में हम क्या घास कोई कुछ नहीं मिल रहा, क्या खिलाएंगे? इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई तंबू वगैरह भी नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये सैलाब मुतासरीन हैं, शदीद परेशान हैं। इनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इनको ना तो तंबू दिए गए, ना रिहाइश के लिए कोई इंतज़ामात किए गए। जबकि इंतज़ामिया से बात हुई है तो इंतज़ामिया ने ये बताया है कि उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए एक मखसूस खैमा जो है बस्ती कायम की है, जहाँ पे जो है लोगों के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन ये लोग जो हैं दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें यहाँ पर सहूलियात दी जाएँ। आमिर सोहेल, अपडेट करने का शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खानपुर की जहां दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है। सैलाबी रेला 8,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन दरिया किनारे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं।
दरिया सतलुज में बहावलपुर से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ वर्क का सिलसिला अभी जारी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के खिदमत खल्क शोबा की तरफ से नॉर्दर्न बाईपास पर खैमा बस्ती आबाद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया सतलुज में बहावलपुर के ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। ब्यूरो चीफ रजा मलिक इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के हवाले से अच्छी खबर तो यह है कि गंडा सिंह के मकाम पर जो है वो पानी की सतह में नुमायां कमी आई है और पानी का जो बहाव है वो मुसलसल कम हो रहा है। लेकिन बात करें अगर भावलपुर की, तो एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद हुई है और जो गेज है वो ऊपर जा रही है, सतह बुलंद हो रही है। बच्चों के लिए जो सैलाब मुतासिर बच्चे हैं उनके लिए स्कूल भी कायम किया गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। सर, स्कूल भी बनाया गया है, खेमे भी नजर आ रहे हैं, खाने का बंदोबस्त भी है और कहाँ कहाँ दीगर जो है वो मदद का सिलसिला जारी है? सर, सबसे पहले तो मैं एहलियाने पाकिस्तान से ये कहूँगा कि मौसम पाकिस्तान रियासत भावलपुर इस वक्त मुश्किल वक्त में है। 200 किलोमीटर की पट्टी पानी में डूबी हुई है। आप जानते हैं, रात आप भी रिपोर्टिंग आपने की है कि ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर पानी आ गया है। 8 फुट पानी चल रहा है। के लिए तालीम एक मोमन का जेवर है। इनका वक्त ज़ाया ना हो, ये मददगार टीम ने हमारी यहाँ पे अली हमजा साहब ने यहाँ पे स्कूल बनाया है। यहाँ पे इनको तालीम दी जाएगी। ये खैमा बस्ती सैकड़ों जो है खैमों के ऊपर मुश्तमिल है। तमाम किस्म की सहूलियात है। 3 वक्त का खाना है। जी बिल्कुल, 3 वक्त का जो है वो खाना है। जो है वो ये खैमे जो हैं ये आबाद किए गए हैं और इनको और जो है पूरा जो इंतज़ाम जो है वो बुनियादी तौर पर इस बस्ती के हवाले से मुकम्मल किया गया है। ऊंची जगह पे एक महफूज मकाम पर ये खैमे लगाकर जो है यहाँ लोगों को मुंतकिल किया गया है। खैमों के अंदर जो है सलामत सामान भी मौजूद है। रजा मलिक अपडेट करने का शुक्रिया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हासिलपुर की सियासी और समाजी शख्सियत इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए मैदान अमल में आ गए। सैलाब मुतासरीन को अशेख और नोश पहुंचाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हासिलपुर की सियासी और समाजी शख्सियत इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए मैदान अमल में आ गए हैं। मलिक अब्दुल रशीद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल ऐसा है कि रहम करो तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इलाका की जो सियासी व समाजी शख्सियात हैं इस वक्त राशन तकसीम कर रही हैं। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए मैदान अमल में आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक दुख और आफत की घड़ी है जिसमें हम अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ इस मुश्किल घड़ी में शाना बशाना उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमसे जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह उनकी खिदमत भी करेंगे। उनके लिए जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम उनकी पूरी मदद भी करेंगे और अपने इलाके की दोबारा बहाली के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई ये जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं ये अल्लाह ताला इनको वापस इस मुसीबत की घड़ी से निकाले और ये लोग अपने वापस घरों में जाएं और इन वैसे ही आबाद हों जैसे पहले ये अपने घरों में आबाद थे। मुक्तदर जो लोग हैं उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि अपने इलाके की आवाम का ख्याल रखें और उनका ये भी कहना है कि जब तक सैलाब से मुतासर होने वाले एक एक फ़र्द को घर में मुंतकिल नहीं कर देंगे हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। उनके लिए खाने पीने और दीगर अशियाए ज़रूरिया का इंतज़ाम करते रहेंगे। मलिक अब्दुल रशीद अपडेट करने का शुक्रिया। कि मौजा इस्माइलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां तेज हो गई। बस्ती अबासिया के मुतादिद घर दरियाबुर्द हो गए। कटाव की रफ्तार बढ़ने से दर्जनों घरों को शदीद खतरा लाहक है। मजीद बात करेंगे दिलशाद जोया से। देखिए जी, जहां कोई ना पहुंचे वहां तो रोही की टीम पहुंची जाती है। हम इस टाइम मौजूद है मौजा इस्माइलपुर बस्ती अबासिया में, जहां पे एक हस्ती बस्ती जो इलाका था वो अब वैरान होना शुरू हो गया है क्योंकि दरिया सतलुज की जो तबाहकारियां है मुसलसल जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक घराने में। ऐसा घराना है जिसका घर जो है पूरी तरह दरिया सतलुज की जद में आकर तबाह बर्बाद हो चुका है। मेरी यहाँ के मकीन मौजूद है, उनसे बात करूंगा। भाई आप बताइएगा, आपका घर है, 10 कमरे आपके गिर चुके हैं, अभी तक इंतजामिया ने कोई आपको रिलीफ फराहम किया? नहीं, कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक। मैंने 1122 को भी काफ़ी मरतबा किया है कि सामान निकालना है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। यहाँ बिल्कुल नहीं भी पहुंचे, ना राशन पहुंचाया और ना कोई सामान निकालने का कोई जरिया दिया उन्होंने। मैं अपने
ज़ाती तरीके से उसको निकाल रहा था, लेकिन वो सामान जो है नीचे गिर गया था मेरे से और काफ़ी बह गया है। तकरीबन 5 लाख के करीब उसमें पेटी में सामान था, बर्तन वगैरह और ये चीज़ें थी। दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने जहां आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, वहीं सरकारी इदारों के साथ साथ फलाही और प्राइवेट तंजीमें भी मैदान अमल में हैं। मुतासरा खानदानों को 3 वक्त का खाना, पीने का साफ पानी और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मलिक अतीक लांग मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर सरकारी तंजीमों के साथ साथ प्राइवेट तंजीमों की, तो प्राइवेट तंजीमें जो हैं वो भी सैलाबज़दा इलाकों में मुतहरक नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में जो जाकर वहाँ पानी और खाना भी तकसीम कर रहे हैं। इलाका मकीन मौजूद है, मुतासरीन उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी चाचा, खाना पुछदा पे जी असी खाना इन्होंने लोगों की बड़ी मेहरबानी है। ऐसा को टाइम नाल 3 टाइम खाना देने खड़न, पानी भी पाकवा देने खड़न, इन्हों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। 3 टाइम साको खाना देन, बस साको इहा करो कैंप मिलिया वञे, नगद पैसे भी साको दे वञन, साना बहुत लोग ख्याल करने पे। मेरे साथ तंजीम के जो मेंबर हैं उनसे इस हवाले से बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत अक़दस मुफ्ती फजल सुभान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आला सर फाउंडेशन की टीम सतलुज दरिया की जो तबाहकारियाँ हैं इस इलाकों में भेजा और कई दिन से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम बढ़ेंगे, जो हो सकता है बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मैं मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ आला सर फाउंडेशन के साथ जुड़ें, बढ़ चढ़ के ताउन करें ताकि सही मुस्तहिकीन तक आपकी मदद पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह। अतीक अपडेट करने का शुक्रिया। नौशहरा जदीद शमसाबाद के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, पानी की सतह रोजाना 5 से 6 इंच बुलंद हो रही है। सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पर खैमों और कैंप्स की जरूरत है। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील है। मलिक हबीब लांग मजीद अपडेट करेंगे। सिंह के मकाम पर जो है पानी की सतह कम हुई है, लेकिन यहाँ शमसाबाद टूल प्लाजे के साथ मौजूद हूँ सरकारी बांध पे। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं, सामने जो घर हैं वो पानी में मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके हैं। इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है यहाँ पर ना ये पानी की वजह से रोज़ाना मुसलसल आधा फुट जो है पानी में इजाफा हो रहा है ये सरकारी बंद के साथ साथ। तो बीमारियों में भी काफ़ी जो है वो लोग मुब्तला हो रहे हैं और जानवरों की जो है वो खुराक नहीं है, बच्चों के लिए खाने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भी क्या हो सर, पूरा घर बुड़ गए, कोई शय का नहीं, पानी रोजाना चढ़ दे, सन नाल कई तावन किता वने, कई कैंप मिलिया वने, पानी की वजह के बीमारियां थी पन, कोई कैंप मिलिया वने, कई खाने का इंतजाम थिया वने। जी जैसे कि आपने सुना भी यहाँ पर पानी में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आया, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से अपील की जा रही है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी बीमार हैं, खाने के साथ साथ बच्चों की जो अदवायात हैं वो भी मुहैया की जाएँ, इसके साथ साथ रिलीफ कैंप जो हैं वो भी मुहैया किए जाएँ। जी हबीब अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले माल मवेशी समेत मौजूद हैं। बस्ती शाह जंगली वाला में 400 से ज्यादा घर सैलाब की नजर हो गए। सैलाबी पानी बस्तियों से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। तफसील जानते हैं अमर खान से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में जो है वो बस्ती जंगली वाला में, यहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी। इसी वाले से बात करें बस्ती जंगली वाला में जो है वो इस वक्त जो है वो सैलाब का पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे उतरना शुरू हो गया, लेकिन सैकड़ों घर जो हैं वो इस वक्त तबाह होकर रह गए हैं। लेकिन जो मुतासरीन है वो महफूज मकामात पर मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनकी कोई दादरसी नहीं की जा रही। बात करने के लिए हमारे से मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही? सारी बस्ती 300 घर है, कोई साको कोई खाना पीना कोई शे नहीं दे मैंने हुकूमत को कोई शे नहीं खड़ी उते पोलते लंगड़ियाल दे सूरी मैणी कासे मेले दे वो लोग खाते पैन इतना कशे थलो पहुंचती भाई। जी बिल्कुल, बस्ती जंगली वाला में जो है वो शहरियों का कहना है कि मुतासरीन का कोई चीज़ नहीं मिल रही। मास्क करने के दूसरे मुतासरीन भी मौजूद, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही? मुश्किलात ये पेश आ रही है, हमारे घर ना पीछे पानी में डूबे हुए हैं हमारे, और गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई इंतजामिया इधर नहीं आ रहे, और हर इंसान है अपनी मदद तहत आप कर रहे हैं। और खुले आसमान तले ना 2 लोग देखे इधर बैठे हुए हैं, और कोई टेंट वगैरह कुछ भी उन लोगों ने नहीं दिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके घर जो हैं वो इस वक्त सैलाब के पानी में जो है वो डूब चुके हैं, तो जो कि 300 से 400 घर हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। मजीद जो है इनका यही कहना है कि अपने माल मवेशी भी खुले आसमान के तले लेके बैठे हैं। मजीद जो इन्होंने इंतजामिया से आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है वो इनकी दादरसी कीजिए ताकि ये भी
अहमद अपडेट करने का शुक्रिया। हाईकोर्ट बार मुल्तान के अहदेदारान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बार अहदेदारान ने हुकूमत से जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए आपको लिए चलते हैं। सब उन लोगों की मजम्मत करते हैं कि जो इस आफत की सूरत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमदाद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत टाइम है, होती रही है, होती रहेगी, लेकिन इस वक्त अजाब आ चुका है साउथ पंजाब के ऊपर। इस वक्त जो ज़रूरत है वो उन लोगों की मदद की ज़रूरत है जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी पानी में डूब के हार चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सियासत की नहीं, मदद की ज़रूरत है। यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें। वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगे। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना हो चुकी है। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना हो चुकी हैं। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच चुकी हैं। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए रवाना हो चुकी है। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। आपको बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर की बस्ती गुल मोहम्मद गंगा के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज रवाना हो चुकी है। वजीर आला गुल मोहम्मद गंगा और नूरवाला फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लेंगी। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मैक्लोडगंज में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। सैलाब से मुतासर लोगों में बड़ी मिकदार में अशिया खुरनोश 200 से ज्यादा अफराद में तकसीम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर रजा से। इस वक्त मौजूद हूँ मौजा आजम छीना के मुकाम पर, जहाँ पर दरिया सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सतलज की तबाहकारियों से यहाँ पर जो है जो फसलें ज़र-ए-आब चुकी हैं और सैकड़ों घर जो हैं वो ज़र-ए-आब आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी खिदमत के लिए केमिस्ट एसोसिएशन मिंचनाबाद भी मैदान में आ गई है। तो अपने बहन भाइयों की मदद के लिए आज क्या यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है, तो ये हम जानेंगे केमिस्ट एसोसिएशन मिंचनाबाद के सदर शेख इंतसार साहब से। जी सर बताइएगा आज क्या आप यहाँ पे लेके आए हैं तकसीम करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहसील केमिस्ट यूनियन ने डोनेशन किया है और अपने जो मुतासरीन भाई हैं, दरिया में जो लोग मुतासर हुए हैं, उनके लिए राशन हम लेकर इधर तकरीबन 238 बैग लेके आए हैं, जो तकरीबन 238 लोगों को तकसीम किए जाएंगे। जिन दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने हमारे साथ तामन किया है, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। जी, केमिस्ट एसोसिएशन तहसील मिंचनाबाद के सदर का कहना था कि यह मुखय्यर इजरात के तावन से और केमिस्ट एसोसिएशन के तावन से आज जहाँ पे जो है वो चावल, घी, दालें, आटा वगैरह का जो है यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है।
تو یہ ہم اپنے متاثرین بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ لمحہ بلمحہ ہم اس طرح اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے رہیں گے. جی ملتان میں مریم نواز شریف چائلڈ ہارٹ سرجری پروگرام کامیابی سے جاری. پروگرام کے تحت کارڈیولوجی ہسپتال میں 850 بچوں کی سرجری. چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں سی ایم پنجاب ہیلتھ کارڈ کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم. مزید جانتے ہیں نمائندہ ملتان گوہر رحمان شیخ. جہاں پر دل کے امراض کے حوالے سے بات کی جائے تو بزرگ لوگ اور خواتین اور مرد حضرات اس کا شکار ہو رہے تھے، وہاں پر بچے بھی بڑی تعداد میں دل کے امراض میں شکار ہونے لگے ہیں. اور اسی اسنا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جو بائی برتھ جو بچے ہیں جو دل کے امراض کا شکار تھے ان کے لیے چائلڈ ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس کے لیے خصوصی طور پر کارڈ جاری کیا گیا تھا. اس کارڈ کے تحت گزشتہ 1 سال کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت ہم ملتان کے چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں موجود ہیں جہاں پر چائلڈ ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک 1300 کے قریب جو بچے ہیں انہیں رجسٹر کیا گیا ہے اور اس میں سے 850 کے قریب جو بچے ہیں جن کی کامیاب سرجریاں ملتان کے چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں کی جا چکی ہیں. تو حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ پروگرام شروع کیا گیا وہیں پر اب تک جو ہے 1300 کے قریب جو بچے ہیں انہیں اس پروگرام کے تحت رجسٹر کیا جا چکا ہے اور اسی پروگرام کے تحت ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اس اسپیشل کارڈ کے تحت اب تک 850 کے قریب سرجریاں کی گئی ہیں اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بچوں میں کارڈک کے معاملات ہیں پیدائشی طور پر جن کو پہلے علاج معالجے کی سہولت نہیں دی جاتی تھی اب ملتان کے کارڈیولوجی ہسپتال میں یہ سہولت بھی دی جا رہی ہے اور اب تک 1300 سے زائد جو بچے ہیں وہ اس میں رجسٹر کیے جا چکے ہیں. جی گوہر اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ناظرین سیلابی صورتحال میں گھرا جلال پور پیروالا. جلال پور سٹی کو بچانے کے لیے گیلانی ایکسپریس پر ڈالنے والے شگاف سے پانی کی سطح برقرار ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیلابی صورتحال میں گھرا جلال پور پیروالا. جلال پور سٹی کو بچانے کے لیے گیلانی ایکسپریس پر ڈالنے والے شگاف سے پانی کی سطح برقرار ہے. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم اپڈیٹ کیجیے گا. تازہ ترین اگر صورتحال کی بات کرتے چلیں تو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور ان کو بریفنگ جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کے زیر اہتمام جو ہے وہ یہاں پر دی گئی. جو چارٹ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت جس چارٹ پہ میں موجود ہوں تو وہ یہ N115 جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ میں موجود ہوں اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ M5 موٹر وے گزرتی ہے. جلال پور پیروالا کی اگر ہم فلٹ بند کی بات کرتے ہیں تو فلٹ بند کو توڑنے کے بعد اور شگاف ڈالنے کے بعد اگر ہم شگاف کے سیکشن کی بات کرتے چلیں تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے M5 کے ساتھ جہاں پر جو ہے وہ شگاف ڈال کے اس پانی کو یہاں سے نکال دیا گیا. صرف اس پوری کی پوری آبادی کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کو سارا پانی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا. یہ اس کا ایک سیٹلائٹ ویو جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے. صرف یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اندر پانی نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کو اس کا شہر جو ہے وہ جلال پور پیروالا کا کہا جاتا ہے. اس کے سائڈ پہ 8 کلومیٹر تک کا جو بند ہے وہ باندھا گیا ہے اس شہر کو بچانے کے لیے. اسی طرح اگر ہم فلڈ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہ ریور ستلج جو ہے وہ یہاں پہ رک کر رہا ہے جلال پور پیروالا کا اور اس سائڈ سے چناب اور اس کے ساتھ ساتھ چناب میں راوی کا پانی جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھیں گے کہ چناب کا پانی اور راوی کا پانی ادھر سے ستلج اور بیاس دونوں آ کے جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ مل رہے ہیں. وہ پوائنٹ کون سا جس کے اوپر یہ مل رہے ہیں اب اس سائڈ پر آ جاتے ہیں. یہ تمام موضوع ہیں جو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اگر ہم صورتحال دکھا سکیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آ کے شینی میانی سے آگے ہیڈ پنجند ہے جہاں پر یہ پانچوں دریا جو ہے وہ آ کے ملتے ہیں. لیکن شیعہ میانی جو ہے وہ ایک شینی میانی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ چناب ستلج اور راوی کے ساتھ ساتھ بیاس جو ہے یہ بھی آ کے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ علاقے پورے پانی میں ڈوب چکے ہیں. میر ملا کی بات کریں، بہلی کی بات کریں، عنایت پور کی بات کریں، عمر پور کی بات کریں، کوٹلہ چاکرا کی بات کریں یا جھاپو کی بات کریں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور سیلابی صورتحال کی نظر ہو چکے ہیں اور یہاں پر امدادی کاروائیاں جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہیں. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا عمل تاحال جاری ہے. تاحال جاری ہے. وسیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں پی سی بی کے زیر اہتمام عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں حنیف محمد ٹرافی کا میدان سجا ہوا ہے. کوئٹہ اور حیدرآباد ٹیم کے مابین 4 روزہ میچ کا دوسرا روز حیدرآباد ٹیم کے بلے بازوں نے گراؤنڈ میں چھکے چوکوں کی برسات کر دی ہے. مزید بتا رہے ہیں عامر بھٹی.
बिल्कुल रहीम खान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को बहाल किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इवेंट क्रिकेट का हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो है वो सजा हुआ है। तीसरा मैच जारी है। कल के दिन जो है वो हैदराबाद टीम ने जो है वो बैटिंग स्टार्ट की थी। पहले 8 से 9 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे और ये लगता कि ये जो टीम है जो आज के दिन ही आउट हो जाएगी, लेकिन दूसरे दिन भी इनकी टीम की इस वक्त जो है वो बैटिंग जारी है, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग जारी है। एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के तारिक सरवर साहब, उनसे जानते हैं। देखें, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि मौसम बड़ा अच्छा हो चुका हुआ है, इससे केवल बारिश भी हो चुकी हुई है। ग्राउंड की हालत तो पहले बहुत बेहतर थी, अब उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गई है बारिश होने से, और पिच कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं, स्पोर्टिंग हैं दोनों बैट्समैन और बॉलर्स के लिए। तो जहाँ पर जो अच्छे बॉलर हैं वो आउट भी कर रहे हैं, जो अच्छे बैट्समैन हैं वो रन भी कर रहे हैं। तो क्रिकेट का यही हुस्न है कि हर किस्म के प्लेयर के लिए एक पूरा मौका हो, और ये 4 रोज़ा क्रिकेट है, लम्हा बलम्हा मैचेस बदलते हैं, यहाँ पर सूरत हाल मैच की बदलती है, लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी यहाँ पे खुद आता हूँ डेली, तो हम लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत इवेंट है जो क्रिकेट बोर्ड ने साउथ पंजाब में मुनक्किद किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के और इवेंट आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में यहाँ पर होते रहेंगे, जिससे हमारा ये स्टेडियम और हमारे इलाके की क्रिकेट मजीद बेहतर होती रहेगी। बिल्कुल, इलाके की क्रिकेट जो है वो भी मजीद खूबसूरत होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं ग्राउंड में छक्के चौकों की बरसात है, जहाँ खिलाड़ियों की कोशिश है कि अपनी टीम को जितवाएं। तो शायकीन क्रिकेट भी इस खेल के मैदान में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से खूब इंजॉय हो रहा है। आमिर भट्टी अपडेट करने का शुक्रिया।